بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پیراگراف نمبر 8 جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. اس کی ریڈنگ کریں گے. اس میں جو گرامیٹیکل پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور یوں ہماری ٹیکسٹ جو ہے انشاءاللہ آج اپنے اختتام کو پہنچے گی. میں اس اسکرین کو میکسیمائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ کین absorb thousands impossible. ایبزارب کا لکھ لیں ٹیک اپ، اٹریکٹ اور ٹیک ان. ٹیک اپ، اٹریکٹ اور ٹیک ان. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب تھاؤزینڈ. حکومت ہزاروں لوگوں کو جاب نہیں دے سکتی، نوکری نہیں دے سکتی. امپاسبل، یہ ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ. لیکن سرکاری نوکری حاصل کرنے کے مقابلے میں موسٹ آف یو، تم میں سے زیادہ تر، ول بی ڈیمورلائزڈ، مایوس ہو جائیں گے یا غیر مطمئن ہو جائیں گے. لیکن سرکاری نوکری حاصل کرنے کے چکر میں یا مقابلے میں آپ میں سے زیادہ تر ڈیمورلائزڈ یعنی مایوس ہو جائیں گے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، یعنی حکومت جو ہے وہ صرف چند ایک کو نوکری دے سکتی ہے. سرٹن نمبر کا مطلب مخصوص تعداد کو. حکومت صرف مخصوص تعداد کو نوکری دے سکتی ہے. یہاں پر لفظ جو سرٹن ہے یہ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے. سرٹن جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، یعنی حکومت صرف محدود افراد کو ہی ملازمت دے سکتی ہے یا چند افراد کو ہی ملازمت دے سکتی ہے. اینڈ دا ریسٹ، اور باقی لوگ. دا ریسٹ کا مطلب باقی لوگ. کین ناٹ سیٹل ڈاؤن، وہ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن کا مطلب سنبھال نہیں سکتے ٹو اینی تھنگ ایلس، کسی اور شعبے میں، یعنی کسی اور شعبے میں خود کو سنبھال نہیں سکتے. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ، ڈسگرنٹلڈ کا لکھ لیں ڈسکنٹینٹڈ، ڈسسیٹسفائیڈ، انہیپی. اور مایوس ہو کر، آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی پرسن، مایوس ہو کر ہمیشہ ان لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی پرسن، ان لوگوں کی جانب سے استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں. who have their own access to grind. to have one's own access to grind کا یہ ایڈیم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا فائدہ نکالنا، ہر وقت اپنا ہی فائدہ سوچنا. their own access to grind، اس کا مطلب ہے ہڈن ایجنڈا، پرسنل موٹیو یا سیلفش انٹرسٹ. بینگ ڈسگرنٹلڈ یعنی مایوس ہو کر، اور مایوس ہو کر وہ ایسے لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا جو صرف اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ سنیں، میں شروع سے دوبارہ اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. حکومت ہزاروں لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتی، امپاسبل، یہ ناممکن ہے. لیکن گورنمنٹ سروس حاصل کرنے کے مقابلے میں موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائز، آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. گورنمنٹ کین ناٹ ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، حکومت صرف ایک محدود تعداد کو ہی نوکری دے سکتی ہے. اینڈ دا ریسٹ، اور جو باقی لوگ ہیں، کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس، کسی اور شعبے میں خود کو سنبھال نہیں پاتے. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ، اور مایوس ہو کر are always ready to be exploited by person، ہمیشہ ان لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں who have their own access to grind، جن کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈائیورٹ کا مطلب مبذول کریں یا مرکوز کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مرکوز کریں اپنی جو توجہ ہے. ڈائیورٹ کا مطلب ہوتا ہے مرکوز کرنا.
मोड़ लेना। नाउ आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, कि आप अपने जहन को मोड़ें, योर अटेंशन अपनी तवज्जो को, योर एम्स अपने मकासद को, एंड एम्बिशन और अपने नस्बुल ऐन को, टू अदर चैनल्स दूसरे रास्तों, एंड अदर एवेन्यूज और दूसरे मौक़ों की तरफ मोड़ें। ये चैनल्स एंड एवेन्यूज, ये दरअसल ये जॉब्स की टर्म्स हैं, ठीक है, मुलाजमत की टर्म है, ये इजहार ख्याल की टर्म्स हैं। चैनल्स एंड अदर एवेन्यूज, एवेन्यूज का लिख लें वेज, मीन्स और मेथड्स। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तवज्जो मबजूल करें, आप अपने जहन को, अपनी तवज्जो को, अपने मकासद को और अपने नस्बुल ऐन को, टू अदर चैनल्स एंड अदर एवेन्यूज दूसरे रास्तों और दूसरे मौक़ों की तरफ अपनी अपने जहन, अपनी तवज्जो, अपने मकासद और अपने नस्बुल ऐन को मोड़ें। एंड फील्ड्स और उन शोबाजात की तरफ दैट आर ओपन टू यू, जो आपके लिए खुले हैं। देर इज नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, यानी मैनुअल वर्क का मतलब होता है हाथ से काम करना। हाथ से काम करने में कोई आर नहीं है। यानी यहाँ पर मैं एक हदीस भी कोट करता हूँ, अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो यहाँ पर देर इज नो शेम, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं, इन डूइंग मैनुअल वर्क, यानी हाथ से काम करना, एंड लेबर और मजदूरी करने में कोई आर नहीं। There is any mass scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. Immense का लिख लें huge, vast, enormous। जो तकनीकी तालीम है या जो फनी तालीम है, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमें टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, हम चाहते हैं, टेक्निकली का मतलब फनी तौर पर क्वालिफाइड पीपल, तरबियती याफ्ता लोग चाहते हैं। वेरी बैडली का मतलब शिद्दत से, हमें फनी तौर पर तरबियती याफ्ता लोगों की शिद्दत से जरूरत है। यू कैन लर्न बैंकिंग, आप बैंकिंग सीख सकते हैं। कॉमर्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी तिजारत और यानी कारोबार और तिजारत सीख सकते हैं। लॉ, कानून सीख सकते हैं। विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज नाउ, विच प्रोवाइड जो आज कई मौके फराहम करते हैं, यानी ये वो फील्ड हैं, यानी बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एटसेट्रा, यानी बैंकिंग, इसके अलावा कारोबार, तिजारत, कानून वगैरह, जो बहुत सारे अब मौके फराहम करते हैं। ऑलरेडी यू फाइंड द न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड, आप पहले से जानते हैं कि नई जो सनतें हैं वो शुरू की जा रही हैं। न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, नई जो बीमा कंपनियां हैं वो शुरू की जा रही हैं, बीमा कंपनियां शुरू की जा रही हैं। न्यू कमर्शियल फर्म्स, कई तिजारती मराकज कायम की जा रहे हैं। आर ओपनिंग, नए तिजारती मराकज खुल रहे हैं। एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ये भी अपनी तरक्की की तरफ गामजन होंगे। नाउ दीज आर एवेन्यूज एंड फील्ड्स, अब यही वो मौके हैं, एंड फील्ड्स और शोबा जाते हैं, ओपन टू यू, जो आपके लिए खुले हैं, जो आपके लिए खुले हैं। ओपन जो है ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ओपन जो है एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ओपन जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ओपन इन ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर है, आर ओपन फॉर यू, ओपन टू यू, यानी आप पर खुले हैं। थिंक ऑफ देम, इनके बारे में सोचिए। एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, डाइवर्ट का लिख रहे हैं रीडायरेक्ट, डिफ्लेक्ट और शिफ्ट। अपनी तवज्जो को इनके बारे में सोचें और अपनी तवज्जो को इनकी जानिब मोड़िए। एंड बिलीव मी, और मेरा यकीन कीजिए, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ, वहां आप खुद को भी फायदा देंगे। मोर देन बाय मेयरली गोइंग फॉर गवर्नमेंट सर्विस, महज एक सरकारी नौकरी में जाने से ज्यादा खुद को फायदा देंगे। एंड रिमेनिंग देयर, और वहां पर रहकर, इन व्हाट आई शुड से, जिसे मैं कहूंगा अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, यानी क्लर्की का एक दायरा,
यानी वहां पर क्लर्की के एक दायरे में रहोगे। वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वहां सुबह से लेकर शाम तक काम करोगे। इन मोस्ट डिंजी एंड अनकंफर्टेबल कंडीशन, डिंजी, डर्टी, डल, शैबी। इन मोस्ट डिंजी एंड अनकंफर्टेबल कंडीशन, निहायत ही डिंजी जो लफ्ज है इसका मतलब होता है बेतुका सा, बेतुका सा, पुराना सा। इसे मैला भी कहा जाता है। निहायत ही बेतुका या बहुत ही पुराना, एंड अनकंफर्टेबल कंडीशन, निहायत ही अनकंफर्टेबल का मतलब, कंफर्टेबल का मतलब आरामदेह, और अनकंफर्टेबल का मतलब तकलीफ दे। और निहायत तकलीफ दे हालात में सुबह से लेकर शाम करते हुए क्लर्की के एक सर्कल जिसे मैं कहूंगा उससे ज्यादा आप इन शोबाजात में खुद को फायदा देंगे, मेरा यकीन कीजिए। यू विल बी फार मोर हैप्पी, आप और भी ज्यादा खुश होंगे, एंड फार मोर प्रॉस्परस, और भी ज्यादा खुशहाल होंगे। विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज, और भी ज्यादा मौकों की वजह से। टू राइज, यानी फलने फूलने के लिए और ज्यादा मौकों के साथ आप और भी ज्यादा खुश होंगे और ज्यादा खुशहाल होंगे। इफ यू टेक टू कमर्स, अगर आप अगर आप कारोबार की तरफ चलें, एंड इंडस्ट्री और सनत की तरफ जाएं, एंड विल थस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, इस तरह ना सिर्फ आप खुद की मदद करेंगे बट ऑल्सो योर स्टेट, बल्कि अपनी रियासत की मदद भी करेंगे। आई कैन गिव यू वन वन इंस्टेंस, इंस्टेंस का लिखना एग्जाम्पल, केस या अक्यूरेंस। आई कैन गिव यू, मैं आपको दे सकता हूं या सुना सकता हूं, वन इंस्टेंस यानी एक मिसाल या एक वाकया सुना सकता हूं। आई नो अ यंग मैन, मैं एक नौजवान को जानता हूं, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस में था यानी सरकारी नौकरी करता था। 4 years अगो, 4 साल पहले, ही वेंट इनटू अ बैंकिंग कारपोरेशन, कारपोरेशन का लिख लें कंपनी, बिजनेस और एंटरप्राइज। 4 साल पहले ही वेंट इनटू अ बैंकिंग कारपोरेशन, 4 years अगो, ये फ्रेज है। फ्रेज के बाद आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्टरी जो फ्रेज होती है उसको मेन सेंटेंस से हम अलग करते हैं कॉमा की मदद से। 4 years अगो यानी 4 साल पहले, इसके बाद कॉमा। ही वेंट इनटू अ बैंकिंग कारपोरेशन, वो एक बैंकिंग बिजनेस में चला गया, बैंकिंग कंपनी में चला गया। ऑन 200 रुपीज, यानी 200 रुपये, 200 रुपये माहवार की बुनियाद पर बैंकिंग कंपनी में चला गया। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग के मजामीन पढ़े थे। ही हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड स्टडीड का मतलब उसने पढ़े थे या वो पढ़ चुका था। द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग यानी बैंकिंग के मज़ामीन पढ़ चुका था। एंड टुडे, और आज, ही इज मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स, वो उनकी एक फर्म में, उनकी एक कंपनी में मैनेजर है। एंड ड्राइंग 1500 रुपीज अ मंथ इन जस्ट 4 years, और सिर्फ 4 सालों में 1500, 1500 रुपये माहवार ले रहा है। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू हैव, यही तो मौके हैं जिनको हासिल करना है। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, इम्प्रेस अपॉन इडियोमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं इसे फ्रेजल वर्ब के तौर पर। इम्प्रेस अपॉन का मतलब होता है एम्फसाइज या इंस्टिल, आगे ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे एन आइडिया या मेक क्लियर। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, और मैं निहायत जोर देता हूं, आप पर निहायत जोर देता हूं, नाउ टू थिंक इन दीज टर्म्स, के इन इस्तिलाहात में सोचें, इन इस्तिलाहात के बारे में आप सोचें। अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्स्ट आज कंप्लीट हुई, इसका थीम भी हम पढ़ेंगे। द टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल थीम ऑफ नेशन बिल्डिंग थ्रू रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड पर्पसफुल एजुकेशन। यानी टेक्स्ट जो लेसन है, कौमी तामीर में नौजवानों की जिम्मेदारी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना
कायदे आजम जिसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से है, जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से है, वो कौमी तामीर के मरकजी मौजू के इर्द गिर्द घूमती है। थ्रू रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, एक जिम्मेदाराना शहरियत, एंड पर्पसफुल एजुकेशन, और एक बामकसद तालीम के जरिए कौमी तामीर के मरकजी मौजू के इर्द गिर्द ये टेक्स्ट घूमता है। एड्रेसिंग यंग ग्रेजुएट्स, यानी जो नौजवान ग्रेजुएट्स थे उनसे खिताब करते हुए, जिन्हें अर्ज देम टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिविंग इन अ फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट, जिन्हें उन्हें उन्हें कायल करते हैं टू देम टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिविंग, के एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के अंदर रहने की अहमियत को पहचाने, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उन जिम्मेदारियों को पहचाने, दैट कम विद इट, जो इसके साथ आती हैं। ही एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, उन्होंने डिसिप्लिन, यूनिटी एंड हार्ड वर्क और मेहनत की अहमियत पर जोर दिया है। encouraging youth to move away from the colonial mentality of seeking only government jobs and instead explore opportunities। वो नौजवानों के ऊपर जोर देते हैं, नज्म ज़ब्त, इत्तेहाद और जो मेहनत है उसकी अहमियत पर जोर देते हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए कि फ्रॉम द कॉलोनियल मेंटेलिटी ऑफ सीकिंग ओनली गवर्नमेंट जॉब, कि यानी सिर्फ सरकारी नौकरियां हासिल करने के जो नौबादियाती जहनीत है उससे दूर रहें। ठीक है, नौआबादियाती जो जहनीत है उससे दूर रखें। नौआबादियाती से मुराद जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के जेर तहत होता था कि जो क्लर्कशिप की जॉब्स होती थी उनको अहमियत दी जाती थी, तो इसे नौआबादियाती कहते हैं। यानी एक कौम पर किसी दूसरी कौम का जब जब कब्जा होता है, जब इंडिया के ऊपर कब्जा था ब्रिटिश का, तो तब ये मेंटेलिटी पाई जाती थी। तो इस वक्त वो इसी के बारे में कह रहे हैं कि इस मेंटेलिटी से बाहर निकलें। उस वक्त मेंटेलिटी थी कि गवर्नमेंट सर्विस करनी है, एंड इंस्टेड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, और इसकी बजाय मौके तलाश करें ऐसे शोबों में जैसा कि कॉमर्स है, जैसे कारोबार है, सनत है, कानून है, एंड टेक्निकल एजुकेशन, और जो फनी तालीम है। द स्पीच हाईलाइट्स द नीड फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन, यानी ये जो तकरीर है ये उजागर करती है द नीड फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन। कंस्ट्रक्टिव जो है एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब तामीरी, एक्शन का मतलब होता है काम। तामीरी काम की जरूरत को उजागर करती है इन अ टाइम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी एक कौमी तरक्की के दौर में, एंड वार्न अगेंस्ट कंप्लिसेंसी, एक्सप्लॉइटेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स। वार्न के बाद अमूमन हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वार्न जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। आई वार्न हिम अगेंस्ट द डेंजर, आई वार्न हिम अगेंस्ट द डेंजर, यानी मैंने उसे खतरात से खबरदार किया, खतरात से उसे खबरदार किया। वो कहता है कि एंड वार्न अगेंस्ट कंप्लेसेंसी, एक्सप्लॉइटेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स, यानी कंप्लेसेंसी का मतलब होता है यानी खतरा भी हो लेकिन इसके बावजूद मुतमिन रहना, यानी खतरात के बावजूद मुतमिन रहना, इत्मीनान। एक्सप्लॉइटेशन, इस्तेहसाल। एंड इंटरनल थ्रेट्स, जो और जो अंदर के खतरात हैं उनके बारे में हमें वार्न करते हैं, हमें खबरदार करते हैं, नौजवानों को खबरदार करते हैं। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि यानी खतरा भी हो लेकिन इसके बावजूद उस खतरे के खिलाफ कुछ करने की बजाय मुतमईन बैठे रहना। ओवरऑल द मैसेज कॉल्स ऑन स्टूडेंट टू यूज देयर एजुकेशन नॉट ओनली फॉर पर्सनल गेन, यानी मजमूई तौर पर ये जो पैगाम है ये स्टूडेंट्स को इस बात पर आगाह करता है या उनको पुकारता है टू यूज देयर एजुकेशन, के अपनी तालीम को सिर्फ जाती फायदे के लिए इस्तेमाल मत करें, बट ऑल्सो टू सर्व द नेशन, बल्कि कौम की खिदमत करने के लिए भी।
with sincerity यानी खलूस के साथ, सेल्फलेसनेस इसार के साथ, एंड विजन और मकसद के साथ इस तालीम को इस्तेमाल करें। तो ये हमारा थीम था। यहाँ तक हमने टेक्स्ट जो है अपनी कंप्लीट कर ली है। आगे हम ग्लोसरी की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोसरी, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। एवेन्यू का मतलब होता है खयाबान या रास्ता। ब्लॉकेड का मतलब होता है मुहासरा। मुहासरे का मतलब होता है घेरे जाना। इसी तरह चांसलर क्या होता है? चांसलर का उर्दू में मतलब है सदर या नाज़म। ये एक आला ओहदेदार को जाहिर करता है जो किसी इदारे या तंजीम का सरबराह होता है। खास तौर पर यह यूनिवर्सिटियों में एक आला ओहदेदार के बारे में कहा जाता है, चांसलर, जिसे शेखुल जामिया भी कहा जाता है। डिप्लोर का मतलब अफसोस करना। डिसग्रंटल्ड का मतलब नाराज या मायूस। एक्सप्लॉइट का मतलब फायदा उठाना, इस्तेमाल करना और इस्तेहसाल करना। होलोकास्ट मुकम्मल तबाही को कहा जाता है। इनकम्बेंट का मतलब होता है जिम्मेदार। सेल्फलेसली का मतलब होता है खलूस के साथ बेलौस होकर। विजिलेंस का मतलब होता है बेदारी और होशियारी। ठीक है, इसके आगे मीनिंग जो है वो भी दिए गए हैं इंशाल्लाह। इसकी एक्सरसाइज का आगाज हम कल से करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेसन जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। और अपने कमेंट्स के लिए, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मज़ीद सब्सक्राइबर, मज़ीद लाइक्स जो हैं वो जमा करें। हम चैनल को मिलकर हमने प्रमोट करना है। ठीक है। चैनल जो है वो स्लोली चल रहा है क्योंकि आप लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल बशर्ते हयात हम नए लेसन के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे, यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हम कल करेंगे इंशाल्लाह अजीज। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।